Okay. So on day before yesterday, we started with array, and we understood what is the problem if you do not use array. So if you do not use array and we want to store multiple values, we have to create that many number of variables and start storing the values. But the problem is huge. When we create a lot of variables, managing that variable becomes easy, difficult. So that's the reason we have array. So using array, we can hold or store multiple values that can be a variable size. So we have same type of data, we can have n number of values. And all these elements are stored as part of a sequential memory locations. Now why we use array? We use array to store multiple values, and since values are stored in sequential memory locations, we can access the values very quickly. So we get a quick access. Then we understood how to use an array to store multiple values. Then we have understood that whenever we create an array, we actually create an object, and for that object we have a reference pointing, right? And all the array elements are stored as part of that particular object, and in that particular object elements are stored in the sequential memory locations. Then we know that whenever we create an array, we have two options. Either you will know that these many elements I want to store, upfront you will know that कि मेरे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं मुझे स्टोर करना है, तो आप उसके लिए ये वाला यूज़ करते हो, जिसमें लेट्स से यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि एरे ऑफ इंटीजर्स, मुझे पता है कि नंबर ये वाली नंबर्स मुझे स्टोर करना है, तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस और कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स। लेकिन अभी कई बार ऐसे होता है कि आपको क्या एलिमेंट स्टोर करना है एडवांस में नहीं पता होता, तो आप पहले बस क्रिएट करके रखते हो ऐसे क्रिएट करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरे आपने क्रिएट किया 5 एलिमेंट्स का, इंटीजर्स का, और इन दैट एरे यू विल बी स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज, एंड व्हेन यू क्रिएट अ एरे ऑल द एरे एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट वैल्यू 0। इस केस में तो जो भी एरे आप क्रिएट करते हैं उनके एलिमेंट्स इनिशियलाइज होते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कैरेक्टर एरे, दिस हाउ वी क्रिएट अ स्ट्रिंग एरे, ठीक। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई आप एरे क्रिएट करते हो, it points to an object which will store the elements. Along with that, there it maintains a length variable. तो लेंथ वेरिएबल क्या करता है, ये इट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ओके, ओके, दिस वन, ओके ओके ओके, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट, नो, करेक्ट करेक्ट correct. So array is a container. It is kind of a container which is labeled to a container whose address is 100 and which stores the 200. Now what is 200? 200 is the address of this particular object. So it can store only one value. Hmm. Into, okay, okay, okay. See here. Now I have this array and I have another array which is empty. You are saying, right? Okay, okay, okay. You can create. Correct. No, no. One object can be referred by any number of references. So I can have n number of references pointing to this object. Yes, when I do this, this is what happens. Now let me tell you. When I write this statement,
array 1 equal to 1 2 3. ठीक है. Now what happens in this case? Array 1, it is pointing to an object where elements are stored 1 2 and 3. Then I create another array, int array 2, and I write array 1. So array 1 is just a reference. So whatever array 1 had, now array 1 had what it had. So it had, let's say this is the 100 and the object address is 200. So it also had 200. Now when I write array 2 equal to array 1, so what we do technically, let's say this is address 300. Now this 200 is copied to here. Now this 200 is also pointing to this one only. So both array 1 and array 2 are going to point to the same object. We are just copying this value, reference value. Yes. Yes. Okay. I hope you're clear, right? Okay. Okay. Perfect. So see here, now whenever I said, whenever you create an array, you are actually creating an object, and inside that object you will have the element stored, plus you will have the length variable, which will maintain how many number of containers or what is the size of this particular array. Okay, fair enough. Then we understood that for every array there is a variable length which maintains the size of an array. So length is a instance variable which is associated with every array. Then all array elements are part of object where elements are stored in sequential manner. Then also we have seen couple of examples where we try to create an array with negative array size. So if you try to create an array with negative array size, you will get a negative array size exception. We can create an array with zero size also. If you create an array with zero size, that is also. How do we create an array with negative size, zero size? This is what. So this is an array which contains no elements. This is also an array which contains no elements. So we can do that. Then we have seen how to access the elements. So since array elements are stored in sequential memory locations, so we access them with the help of index. So the first element will be stored at 0th index, first, 2, and like so on. So array index always starts from 0, and the maximum index in given array will be length minus 1. Right? Minimum will be 0 and maximum will be length minus 1. Now if you try to access anything which is not within the range, let's say आपका array है 0 से लेके 5 तक, 5 elements, so minimum index is 0 and maximum is 4. So 0, 1, 2, 3, 4, we have 5 indexes. Then if you try to access, let's say I say array of 5, you will get the array index out of bound exception. Right? So this is what we have seen on day 1, and then couple of some programs. So what programs we have seen on, let me open that also. And yesterday we have seen couple of more programs, continuation to that. Let me open that. So demo 1, we have tried to create multiple arrays with 1 size, 2 size, 3 size. So this array, we know the element. We know the element that this is the actual element we want to store. That's why we have seen. And to find out how many elements are there in the given array, we use array 1 dot length, array 2 dot length. Then we don't know the actual values. Then what we did, we created a array with a specified size. मतलब आपको actual elements नहीं पता है, तो आपने क्या किया, जो elements है उनको जितने भी एलिमेंट्स स्टोर करना है उसका साइज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. ठीक, तो यहाँ पे आपने 10, 5, 20 ऐसे डिफरेंट साइज के एरे क्रिएट करे थे. फिर आपने क्या किया, जीरो साइज का भी एरे क्रिएट किया. वी वर एबल टू डू दैट, राइट. देन वी ट्राई टू क्रिएट एरे विद नेगेटिव एरे साइज, सो वी गॉट द एक्सेप्शन कॉल्ड एज नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन. Then we try to create an array element with negative size, not negative size, negative elements. Not size is not negative, only element is negative integer. Then we tried to access the elements from the given array. So I have stored the elements multiple values. So first will be sitting at 0th index, second will be 1, 2 and 3. So 4 elements, so minimum index will be 0 and maximum will be 3. So I try to access 0, 1, 2, 3, I get the element, but 4 is not there. So I tried to access that and we got array index out of bound exception. Okay.
Then we try to access the elements. Now let's say there are 10,000 of elements in the given array. We cannot manually access the elements one by one, one by one. So what we did for that, we created a for loop. Index starts from 0 till array size. So array size, if you want, you don't need to do that also. You can directly write array dot length also, and index plus plus. Every time your array of this index value will change 0, 1, 2, 3, so forth. Then we try to print the array in the reverse order. So index will be, now we will start iterating the elements from this element 40, 30, 20 like this. So our initial index will be array length minus 1. So array length will be 4, 4 minus 1, 3. So this will be 3 to 0. So each iteration your 3, 2, 1, 0 will happen, and we will be able to print the elements in the reverse order. Then we try to find the sum of elements also. So there we specified a array, and then we have created a one element variable called as sum of array elements, which will store the sum of array. Then what we did, we have just traversed the elements from one by one, one by one, one by one, and we added the sum into this particular sum of array elements. Perfect. Then we try to print even numbers from the given array. So how did we add? Same thing, but we just added the if condition. If array of index mod 2 equal to 0, then we say this is the even number and print that. Then we said how to copy the content from one array to into another array. So I had one array, and then we created a new array with the size of old array. Check. And then we copied one by one element from one old array to new array, and then we again printed the new array. Now let me tell you, when you do this, let's say I have new array 1. Now if I write old array, let me tell you, we are not creating an array in this case. We are just, what we are doing in this case, we are just pointing to the existing array. There will be two references pointing to the only one object. So we are not creating array. So we are just we are creating a new reference variable which contains the same address. So we don't want to do that. What we want to do, we have created a separate new array. So there will be two reference variables pointing to two different objects. Then one by one, we have tried to access. Now if you see here, I try to do that also in this case. Now old array and new array. So we created two. Now already we have old array, then I created a new array. Then using for loop, I copied elements one by one from old array to new array. Then linear search मतलब कोई एलिमेंट है मुझे गिवन एरे में सर्च करना है, तो आपके पास ऑलरेडी एक एरे है, इस एरे में आपको सर्च करना, लेट्स से की, whether this key is present, whether this element is present in this given array or not. तो आपको बस सर्च करना है, क्या करना है, n0 से स्टार्ट करके n-1 मतलब लेंथ -1 तक कंटिन्यू करना है, और हर बार आपको क्या करना है, इस की को कंपेयर करना है इस एलिमेंट के साथ. की इक्वल टू 10, की इक्वल टू 10, 30 लाइक दिस. जब भी मिल जाएगा आपको स्टॉप करना है एंड यू विल से इज फाउंड ट्रू. तो इसके लिए हमने एक फ्लैग लिया था. इनिशियली हम बोलेंगे इट इज फॉल्स, और जैसे ही एलिमेंट मिलता है हम बोलेंगे ट्रू. अदरवाइज एलिमेंट नहीं मिलता तो ऑलरेडी इट इज फाउंड इज फॉल्स. इज फाउंड फॉल्स मतलब नॉट फाउंड, और इज फाउंड ट्रू मतलब आपका प्रिंट होगा फाउंड. फ्लैग नहीं देंगे तो क्या होगा, अब बताओ. फ्लैग नहीं देंगे तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे बोल दोगे मिल गया, नहीं लेकिन नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे फिर, तो कैसे बोलोगे आप, नहीं मिला तो कैसे बोलोगे. आपने लेट से एलिमेंट मिल गया तो आपने सीधे सीधे प्रिंट कर दिया कि एलिमेंट आई गॉट इट, बट इफ यू डू नॉट गेट द एलिमेंट देन व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एट ऑल. सो हाउ डू यू प्रिंट अलग से. ठीक है, तो हमने रिवर्स के लिए लॉजिक देखा था, ये फॉर लूप, ये वाइल लूप कैसे चलता है. तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट लेफ्ट एंड राइट. आई क्रिएटेड टू वेरिएबल्स, लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू 5. सो आई मेंशन अ कंडीशन लेफ्ट इज लेस देन राइट. आई प्रिंटेड लेफ्ट एंड राइट, देन आई इंक्रीमेंटेड लेफ्ट बाय 1 एंड राइट डिक्रीमेंटेड बाय 1. तो आपका आउटपुट आएगा 0, 5, 1, 4, 2, 3. 3 टाइम्स दिस इटरेशन विल वर्क. तो सेम लॉजिक हमने यूज किया था किसके लिए, एरे को रिवर्स करने के लिए. सो वी ट्राई टू रिवर्स द एरे, दिस हाउ वी क्रिएटेड. तो हमने क्या किया था, वी हैड एरे एंड देन वी मेंटेन टू लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, लेफ्ट एंड राइट. तो हमें क्या करना है रिवर्स में, वेरी सिंपल,
ये लेफ्ट एंड राइट, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, इन दोनों को स्वैपिंग करो, देन लेफ्ट प्लस प्लस, राइट माइनस माइनस, तो आपका लेफ्ट आ गया यहाँ पर और राइट आ गया यहाँ पर, फिर इनका स्वैपिंग करो, देन सो। तो आपने क्या किया, कब तक करना है स्वैपिंग आपको, जब तक लेफ्ट आपका राइट से छोटा है। तो आपने बस स्वैपिंग किया, फिर आपने लेफ्ट प्लस प्लस किया, राइट माइनस माइनस किया, और फाइनली आपने फिर से ओरिजिनल एरे प्रिंट कर दिया। ठीक, देन उसके लिए हमने रिवर्स एरे फॉर लूप का यूज कर किया, सेम प्रोग्राम। तो इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट एक साथ डिक्लेयर किया, फिर कंडीशन सेम कंडीशन, और जो इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंटिंग लेफ्ट राइट इनसाइड द वाइल, वी एडेड दैट एज पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और बाकी को एज इट इज। और फिर प्रिंट करने के लिए हमने यूज किया इनहांस फॉर लूप। देन हमने कल कुछ प्रोग्राम्स देखे थे और उसमें हमने चेक किया कि हमें इस एरे में कोई डिजिट है या नहीं। कैसे चेक करोगे आप, वेरी सिंपल। तो हमने यहाँ पे बस स्टार्ट किया 0 से लेके इंडेक्स 0 से लेके एंड तक, लेंथ -1 तक। फिर वहाँ से हमने क्या किया, अगर आपका एरे ऑफ इंडेक्स मतलब ये एलिमेंट इससे इक्वल या ग्रेटर है या इससे लेस देन इक्वल टू 9 है, तो हम बोलेंगे डिजिट प्रेजेंट है और रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और जैसे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हमने बस यहाँ पे मेथड कॉल किया, इज एरे कंटेन्स डिजिट, हमने उसे पास किया एरे। अगर प्रेजेंट करता है तो हम बोलेंगे कंटेन्स डिजिट, डज नॉट कंटेन तो डज नॉट कंटेन। फिर सेम हमने क्या किया था, वोवल कंटेंट करते ही नहीं, उसके लिए भी हमने कल सेम प्रोग्राम ट्राई किया था। तो यहाँ पर भी आपने मेथड कॉल किया, उसको एरे पास किया और एरे को आइटरेट करा बिगिनिंग से लेके एंड तक, और फिर आपने वहाँ पे चेक किया कि ये वोवल है या नहीं। तो वोवल के लिए हमने यहाँ पे इफ कंडीशन ऐड किया और यहाँ पर मल्टीपल हमने और केसेस ऐड किया। अगर प्रेजेंट है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, एल्स यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि कोई एक एरे, कैरेक्टर एरे, उसको अपर केस कैसे करते हैं। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने चेक किया कि ये लोअर केस वाला एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो आप उसमें से -32 कर दो। सिमिलरली आपने लोअर केस में कन्वर्ट करना है, पहले तो आपको चेक करना है कि एलिमेंट अपर केस में है तो उसमें क्या करना है, आपको +32 करना है। उसका यूनिकोड वैल्यू है आस्की वैल्यू, ए का 65 होता है, कैपिटल ए का, और स्मॉल ए का 97, तो ऐसे मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद हमने देखा था एरे इक्वालिटी, आपके पास दो एरे है, उन दोनों को चेक करना है कि आपको इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए हमने एक मेथड बनाया था एरे इक्वल्स, उसे पास किया दो एरे, एरे 1 एंड एरे 2। ठीक, फिर हमने देखा कि अगर मेथड को दोनों सेम एरे पास करते हैं, एरे 1 तो आपको सीधा रिटर्न करना है रिटर्न ट्रू। अगर दोनों में से एक भी आपको कोई पास करता है नल, तो आपको रिटर्न करना है फॉल्स। अगर दोनों का लेंथ सेम नहीं है, सीधे सीधा हम बोल देंगे रिटर्न फॉल्स, कि ये दोनों इनइक्वल लेंथ के, तो ये इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक सिंपल चेक लगाया, स्टार्ट से लेके एंड तक आइटरेट किया फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे को। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड एरे को अगर हमको एलिमेंट इक्वल नहीं मिलता तो हम सीधे सीधा बोल देंगे रिटर्न फॉल्स, मतलब दे आर नॉट इक्वल, और एट द एंड हम बोल रहे ट्रू। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक किया कि दोनों एरे इक्वल है ही नहीं। ये अभी तक हमने दिखा था। लास्ट वाले हमने एरेज यूज किया था। हाँ, तो ये एरेज डॉट इक्वल्स, एरेज एक प्रीडिफाइंड क्लास है, उसके अंदर इक्वल्स मेथड है, राइट। तो वो सेम काम करती है जो हमने लिखा है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको यूज करना, तो आप इक्वल्स मेथड यूज करो, ये आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये कोड बस आपके प्रोग्रामिंग राउंड्स जो भी होंगे, हायरिंग टेस्ट, उसके लिए ये है। अदरवाइज आपको जब भी कोई एक्चुअल जॉब पे जाओगे तो आप एरेज डॉट इक्वल्स ही यूज करोगे। फिर से कोड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोड है, तो आप फिर से कोड क्यों लिख रहे हो। So far we have seen how single dimensional array, how they work, what they are, how do we use, how do we create that. अभी आज देखते कि मल्टीपल डायमेंशन मतलब अभी तक आपने क्या देखा
कि एक एरे में आपके पास क्या है, डायरेक्ट इंटीजर्स है, लेट्स से एक इंटीजर एरे है, तो आपके इस एरे के अंदर आपने बस सीधा सीधा वैल्यूज दिया था। सो 10, 23 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे, राइट, एक एरे में हो गया। तो दिस एरे कंटेन्स 3 इंटीजर्स, दिस इज द मीनिंग। अभी एक एरे दूसरा एरे को भी कंटेन कर सकता है एज ए एलिमेंट। व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ऐड अनदर एरे एज अ एलिमेंट ऑफ अनदर एरे। ठीक है, कैसे? अभी मेरे पास एक एरे है, ऑलरेडी मेरे पास एक एरे है, ऐसे एरे 1 एरे 2 भी है। क्या करना है मुझे, मेरे पास एक और एरे है, दिस इज 40, 50, 60, मेरे पास 2 एरे है। अभी मुझे क्या करना है, एक एरे बनाना है तीसरा, जो क्या करेगा, एरे ऑफ एरे होगा। इसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, एरे 1 और एरे 2 क्या रहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन एरे आर एरे 1 एंड एरे 2। तो यहाँ पे मैं इसे बोलता हूँ एरे ऑफ एरे। ये एरे में क्या है, एक दूसरे एरे से एक एरे है, उसके एलिमेंट्स क्या है, एरे। अब ये आप जो नेस्टिंग है कितने भी लेवल तक लेके जा सकते हो। वन एरे कंटेन्स अनदर एरे, दैट एरे कैन कंटेन अनदर एरे एंड सो ऑन। नाउ वन एरे कंटेन्स 2 एरेस, दिस इज वन बिगर एरे which contains 2 arrays. Now if I want to write this, how do I write this graphically? So I can write this also 10, 20, 30, ये एक एरे हो गया, या कॉमा देंगे यहाँ पर, और दूसरा एक एरे 40, 50, 60, ये दूसरा एक एरे हो गया। अभी ये एरे ऑफ एरे है, दिस इज एरे ऑफ एरे, तो आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे। तो आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा। दिस इज नॉट ओनली एरे ऑफ इंटीजर्स, दिस इज एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे। इसलिए आपको ये कितने सारे, इसको कैसे रीड करते हो, एरे ऑफ एरे। दिस इज एरे ऑफ इंटीजर्स, कैसे रीड करते हो यहाँ से, एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ इंटीजर्स। एक बड़ा एरे, उसके अंदर दूसरे एरेज है, और उस एरे में आपको एलिमेंट्स है इंटीजर टाइप के। सो वी हैव एरे ऑफ एरे। ठीक, लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस एरे फिर से एक बार। अभी ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। अभी मुझे क्या करना है, आई वांट टू स्टोर अ एरे ऑफ एरे। हाँ, इसे 2 डायमेंशनल एरे, सो दिस इज 2 डायमेंशनल एरे। तो इसे रीड कैसे करते हैं, एरे ऑफ इंटीजर। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एरे ऑफ एरे, और यहाँ पे मुझे लिखना है, अब ये कर्ली ब्रेसेस, मुझे ऑलरेडी वैल्यूज पता है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस लिख दिया। यहाँ पे 1, 2, 3, कॉमा 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी मुझे बताओ, मैं अगर प्रिंट करता हूँ एसओपी ऑफ एरे ऑफ लेंथ डॉट लेंथ, कितना आएगा, 1 क्यों, लेंथ कितना आएगा, 2, परफेक्ट, क्योंकि ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया, तो आपका साइज कितना हो गया, एरे का 2। अभी ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, हाउ डज दिस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो आपको पता है, दिस इज अ रेफरेंस, दिस इज एरे ऑफ एरे विद अ रेफरेंस विच इज पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ओनली 2, 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स। अभी जो एलिमेंट्स है इसके अंदर 0th इंडेक्स पे जो एरे है, तो एक लोकेशन पे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसको क्या होता है, अगर फिर से मैंने आपको क्या बोला है, एरे एक रेफरेंस होता है, फिर ये यहाँ पे एक रेफरेंस होगा, यहाँ पर एक रेफरेंस जो पॉइंट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपके वैल्यूज रहेंगे, क्या वैल्यूज लिखे थे हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, और यहाँ पर भी एरे बनेगा 4, 5, 6, ये ऐसे आपका स्टोर होगा। ठीक है, चलो हम इसको बना के देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको वैल्यूज पता है, इसलिए आपने ऐसे बना दिया। अभी मुझे वैल्यूज पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, अभी लेट से मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, एरे ऑफ एरे,
और यहाँ पे इसे नाम देता हूँ एरे इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे आप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। यू कैन स्पेसिफाई द, अभी ये साइज का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। 2 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एक हायर जो एरे ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 मतलब मेरा एक बड़ा एरे होगा, उसके अंदर कितने एरेज होंगे 3, और ईच एरे का साइज मतलब इसको ऐसे लिखते हैं 3, लेट्स से 3 किया मैंने। इसका मतलब क्या होता है, एक बड़ा एरे है, इसके अंदर 3 एरेज है, और ईच एरे का एलिमेंट सारे होंगे 0 0 0 0 0 0। ये आपका ऐसा एरे क्रिएट होगा। मेमोरी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी फिर से लिखा इंट, यस इसमें भी सेम ही है, वैल्यूज आर नोन, वैल्यूज आर नॉट नोन। अभी यहाँ पे मेरा एरे है और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, अभी मुझे वैल्यूज पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, तो मुझे पता है कि मेरा आउटर, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है लेट्स से 3 अगेन। इसका मतलब क्या होता है कि एक बड़ा एरे है, इसके अंदर 3 एरेज है, 3 एरेज है, और हर एक एरे में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से, 0 0 0 0 0, ये ऐसा स्टोर होगा। अब मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, मैंने आपको बोला कि ये रेफरेंस होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ reference, this is going to be a reference. So this reference is pointing to an object. How many values are there? Outer array 3 values 0 1 2, और यहाँ पे एक रेफरेंस होगा। मैंने हर बार बोला कि एरे क्या है, रेफरेंस पॉइंट करता है, यहाँ पर भी एक रेफरेंस होगा, यहाँ पर भी एक रेफरेंस होगा, ये पॉइंट करेगा फिर एक अलग ऑब्जेक्ट को, ये भी अलग ऑब्जेक्ट को, ये भी अलग ऑब्जेक्ट, फिर इसके अंदर उसकी वैल्यूज रहेगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और सारे एरे के एलिमेंट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0। परफेक्ट, रोज एंड कॉलम्स। ये देखो आपने यहाँ पे क्या बोला 3, ये पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने सारे रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। कितने सारे रोज है आपके पास, 3 रोज, और ईच रो में कितने कॉलम्स हैं 3। तो अभी फिर से एक बार मैं बना के दिखाता हूँ, दूसरा एक मेरे पास एक एरे है, इंट ऑफ एरे इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ एरे है, मेरे पास एक एरे होगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया 3 और 2। क्या साइज दिया मैंने, 3 और 2। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, और ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तब ये कैसे होगा, देखो आपने बोला कि कितने सारे रोज होंगे, आपने बोला 3 रोज होंगे, तो आपने लिख दिया 3 रोज, और हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे 2, ये ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, अभी इसको फिर और ग्राफिकली हम देखते हैं, इसे ऑब्जेक्ट को पास किया, इसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे, ओनली 2, 0 एंड इंडेक्स, इसका एक रेफरेंस, इसका एक रेफरेंस, फिर ये रेफरेंस यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये भी रेफरेंस यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे सॉरी 3 रोज है ना, 3 है सॉरी रेफरेंस, और यहाँ पे ये 2, तो आपके पास 3 रेफरेंसेस रहेंगे और 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे किस हम्म हम्म करेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन दैट, let me explain that, so you will get more clarity.
Okay, now see here, I have created an array equal to array 1, 10, 20, 30. Then I create another array 2. This will be 40, 50 and 60. I will create one more array, array 3. This will contain 70, 80 and 90. So I have 3 arrays. Now I want to create a array of array. So I have to write array. This is not only array of integers. This is array of array. How do we read this? Array of integers. तो यहाँ पे लिखते हैं array of array equal to, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये curly braces. ठीक है, ये तो पूरा एकदम खाली array of array हो गया. Now there I will specify 3 elements, array 1, array 2, array 3. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट करूँ, इसको प्रिंट करता हूँ मैं. array 1 को प्रिंट करता हूँ, array 2 को प्रिंट करता हूँ, array 3 को प्रिंट करता हूँ और फिर वैसे ही array of array को भी प्रिंट करता हूँ. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? नो, I told you array 1 is a pointing to an object, so it will print the reference. It will print the reference address. It will print hash code. It will print the hash code. Hash code मतलब reference बोल सकते हो आप. यहाँ पर भी तो तीनों चारों भी आपको क्या मिलेंगे? hash code. hash code यानी कि reference या address of that particular object. It is also reference pointing to an object. It is also, all of these 4 are references pointing to an references. All of these are references pointing to all of these objects. If you see here, what is this? This is nothing but a reference or an address. You can think of reference or an address of 4 objects. Now you tell me, let me represent this. I have array 1 which is pointing to an object, array 2 is also pointing to an object, array 3 is also pointing to an object. Check. Now in this object I have 10, 20, 30. In this object I have 40, 50, 60. In this object 70, 80, 90. Perfect. Then I created another array and which contains how many values? 3 values. So A1, A2 and A3. So what are A1, A2, A3? They are references. So A1 will point to here, A2 will point to this one and A3 will point to this one. हाँ, इसकी अलग इंडेक्सिंग. यस, तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ क्या कंटेंट? एरे ऑफ एरे का कंटेंट. मुझे क्या प्रिंट करना है? इसका कंटेंट प्रिंट करना है. किसका? एरे ऑफ एरे का. सो लेट मी प्रिंट द एरे ऑफ एरे. आई विल यूज द, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, प्रिंटिंग एरे ऑफ एरे. ठीक है, यहाँ पे यूज करता हूँ मैं फॉर लूप. इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 और लेंथ कितनी होगी? जो आपका एरे ऑफ एरे है उसकी लेंथ. ठीक, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एरे ऑफ इंडेक्स. मैं कौन सा एरे प्रिंट कर रहा हूँ? ये वाला एरे ऑफ एरे. तो इसकी 3 वैल्यूज प्रिंट होगी, इसकी 3 वैल्यूज प्रिंट होगी. तो यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंटिंग एरे ऑफ एरे कंटेंट. उसका कंटेंट क्या है ये प्रिंट कर रहा हूँ मैं. तो उसका yes, sorry, see, one second, this is array of array and this is an array which contains 3 arrays. Now 3 arrays means 3 references. Each array is pointing to a reference. Now you tell me, this is an array which is referring to an object. So A1 is a reference,
A2 is also reference, A3 is also reference. Similarly, array of array is also reference which is pointing to object. The independent object will have this. Now this object contains the addresses of this particular objects. समझ में आ रहा है? If you see here, it is printing. What is the output? यहाँ पे आप देखो output आपका आएगा hash code, hash code, hash code. ये references print हो रहा है. हाँ प्रिंट, हाँ करेक्ट करेक्ट, प्रिंटिंग एरे ऑफ एरे. हमने यहाँ पे देखो पहले 3 एरे क्रिएट करे सिंपल, और फिर एक दूसरा एक एरे ऑफ एरे क्रिएट किया. उसका कंटेंट क्या है? एरे 1, एरे 2, एरे 3. तो एरे 1 का वैल्यू क्या है? एरे 1 इज अ रेफरेंस. व्हाट इज एरे 1? एरे 1 इज जस्ट अ कंटेनर. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, प्रिमिटिव वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल. सो A1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल. इसका भी कुछ ये वेरिएबल है, इसका जॉब क्या है? कुछ स्टोर करना. तो इसके पास क्या है? लेट्स से 200. इसके पास लेट्स से आई विल ऐड लेट्स से 2000, वॉट एवर द एड्रेस. नाउ व्हाट इज दिस 2000? सो 2000 इज द address of an another object. So this is 2000 and this is where you will have the elements. तो ये okay. Yeah, this is what it is printing. Address of array. यहाँ पे print हो रहा था this was. Okay, let me debug this one by one. Now see here, we have 3 arrays, array 1, array 2, array 3, and array of array also we have created. So array 1, it is a reference, it is pointing an object which contains 3 values. Similarly array 2 also. So array 1 we have 0th index 10, array 2, array 1 first index 20, array 1 second index 30. Similarly array 2, array 3. Now if you see the content of array, if you see array of array, first index, second and third, so 0, 1, 2, and each it is a reference pointing to an object. It is pointing to an object. Now if you see the content, now can you see this 491, 492, 493? This is, you can think of as address where your array is stored. Now array of array, what is the content? 491, 492, 493. Right? Now let me clear out the console. I am printing array 1. So what is array 1? Array 1 is a reference variable. You can think of this 491 as a hash code. It is actually, you can think of an address. Now it will print the address, and at that address we have these 3 values. So what I am printing now hash code or a address. See here. Similarly array 2 is also a reference variable. It is also a reference variable. Location you can think of 492. At this location we have 40, 50, 60. Now that is also printing hash code. Array 3 also similarly it will print the address. So at that address, at that object we have these 3 values. So we are printing only address. Now array of array, it is also a reference variable which is pointing to an object which contains 3 values. So all these 3 values are nothing but references. See here, again we have different reference. Now if you see, these are 3 arrays, array 1, array 2, array 3, and I have printed address of an array of array. Now we are printing content of this particular array, array of array. किसका print कर रहे हैं हम? Array of array का content print कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो क्या print होगा? यही print होगा आपका output. Printing array of array content. तो आपको दिखाई देगा कि आपने जो print कर रहे हो, आप क्या print कर रहे हो? These 3 values and these 3 values are exactly same. एरे ऑफ एरे का कंटेंट क्या है? एरे ओनली, बट एरे में क्या होता है? रेफरेंस. यहां तक क्लियर है? राइट? देखो एरे ऑफ एरे का मतलब सिंपल है, एक एरे में दूसरा एरे. अभी एक एरे आपने क्रिएट किया, मतलब आपने क्या किया? ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया, किसको पॉइंट करेगा? एक ऑब्जेक्ट.
अभी जब मैं इसको प्रिंट करूंगा एसओपी ऑफ ए, क्या होगा, आपको क्या प्रिंट होगा, देखो एसओपी ऑफ ए मतलब ये प्रिंट होगा आपका 100, मतलब एड्रेस। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, इस पर्टिकुलर, ये क्या है एड्रेस, तो ये प्रिंट क्या होगा, अभी मेरे पास फिर से एक बार A1 is pointing to one object, A2 is pointing to one object, A3 is pointing to one object, and let's say I have A4. A4 is also pointing to one object. It has, let's say यहाँ पे 3 values है, यहाँ पर भी 3 values, यहाँ पर भी 3 values, and यहाँ पर भी 3 values. But these 3 values are nothing normal integers. This contains the address of A1, A2 and A3. तो A1 कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पर पॉइंट करेगा, ये A2 कहाँ पर पॉइंट करेगा, यहाँ पर, A3 यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा एड्रेस, किसका एड्रेस, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का। तो सर हम लोग तो रेफरेंस वेरिएबल को कॉपी करते हैं दूसरी जगह पे, सपोज रेफरेंस वेरिएबल 1 है उसमें भी 3 एलिमेंट्स 2 है, करेक्ट। अगर हमने उस रेफरेंस वेरिएबल को कॉपी किया रेफरेंस 2 में तो एलिमेंट्स भी सब कॉपी हो जाते हैं। रेफरेंस कॉपी हुआ ना, ऑब्जेक्ट देखो, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना सर, दैट्स व्हाट आई एम करेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको कितने भी रेफरेंसेस पॉइंट कर सकते हैं, A1, A2, A3, A4, एक ही ऑब्जेक्ट है आपके पास। हाँ हाँ, करेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल्स को अगर कॉपी करें तो अपने आप ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है या नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली यूज किए एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं और फिर कॉपी होता है। देखो अभी यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं फिर से एक बार, A1, A2 और आपने लिखा A1, ये दो लाइनें हैं, राइट, इसी में कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। A1 is a variable, अभी देखो just go to basics, A1 is a variable which has a address, और इसका कंटेंट क्या है, किसी का लेट्स से XXX कोई तो एड्रेस है किसी का, तो ये XX क्या है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस XXX, और यहाँ पे कुछ कंटेंट है 1 2 3, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा है, मैंने एक और वेरिएबल बनाया, उसका एड्रेस है 200, और इसमें मैंने क्या किया, A1 का कंटेंट इसमें ऐड किया, तो क्या ऐड किया मैंने XX, और ये A भी कहाँ पर पॉइंट करेगा, यहाँ पर। तो आपने ऑब्जेक्ट कॉपी किया, क्या किया यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्ट वही है योर, करेक्ट करेक्ट। तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको पॉइंट कर रहे दो दो रेफरेंसेस, करेक्ट करेक्ट। अभी फिर से इसको और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अभी मुझे बताओ, मैंने एक एरे बनाया, एरे ऑफ एरे A3 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है A1 और A2। आप मुझे बताओ ये कैसे चलेगा, ये वाला, A3 इक्वल टू A1 A2, 3 एलिमेंट्स। मैंने क्या किया, अभी एक A3 नया एक वेरिएबल बनाया अभी, उसका लेट से एड्रेस है 300, और ये भी कहीं और पॉइंट कर रहा होगा, लेट से Y Y Y, राइट, ये पॉइंट कर रहे हैं किसको, Y Y। नहीं नहीं नहीं, ये देखो A3 पॉइंट कर रहे हैं एक लोकेशन को जिसका एड्रेस है Y Y Y, और इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, 3, तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका 100 100 200, और ये 100 किधर पॉइंट करेगा, ये इधर पॉइंट करेगा, ये भी इधर पॉइंट करेगा, और ये इधर पॉइंट करेगा, राइट राइट। इसको थोड़ा और ग्राफिकली समझते हैं। अभी देखो आपके पास 3 वैल्यूज रहेंगे, ये 100 100 200, ये रेफरेंसेस है, ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट हो रहा है, इसकी वैल्यूज क्या क्या है आपकी 1 2 3 1 2 3, ये 100 भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, ओके। ये 200 दूसरे कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसका वैल्यूज है लेट से 4 5 6, या सेम ही है आपका कंटेंट। A2 is also same, A2 is also pointing to this one, so A2 is also pointing to this object only, ये सारा ठीक है। 200 मतलब यहाँ पे XX ही होगा, ये सॉरी 100 200 बराबर था। नहीं नहीं, ये A1 की जगह में क्या है, A1 में XX है ना,
ये यहाँ पे क्या आएगा, A1 मतलब A1 लिख रहे हो मतलब XX आएगा, सारी जगह पे XXX ये इसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर भी ये 100 नहीं आएगा, यहाँ पर XX आएगा, X बस करेक्ट, क्योंकि A2 इक्वल टू A1 है। ठीक, अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। अभी आप मुझे बताओ कैसे स्टोर होगा। इंटीजर 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 और ये है एरे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू इंटीजर, लेट्स से 5 4 और 3। केयरफुली ध्यान देना, ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बोला था कि ये राइट हैंड साइड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तब ये एरे किसको पॉइंट करेगा, एक ऑब्जेक्ट को। किसको, एक ऑब्जेक्ट को। इसमें कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स। कितने, 5 एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4। और ये पॉइंट करेगा किसको, ये सारे रेफरेंसेस हो गए नए वाले, ये सारे पॉइंट करेंगे कितने सारे ऑब्जेक्ट को, 5 ऑब्जेक्ट। एक एरे क्रिएट करता है उसको। फिर ये वाला उसका क्या है, 4 मतलब एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया, ये भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। अभी इसके अंदर कितनी वैल्यूज है उस एरे के अंदर, 4। ये सारी एरेज में कितनी सारी वैल्यूज है, 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी ठीक है, अभी इर से ये एरे है, हाँ, तो ये फिर ये 3 क्या कर रहेंगे, ये अलग अलग, फिर ये 3 यहाँ पे जाएंगे। ये कितने सारे, हाँ कितने भी ले सकते हो आप। तो आपको मैं और एक तरीके से, अब ये हो गया आपका लास्ट में एलिमेंट्स, हर एक में 3 हर एक में 3 आएंगे, हर एक में 3 आएंगे। बहुत लंबा हो रहा है, आई नो। ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मेरा एक बड़ा वाला एरे है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। ऐसे यहाँ पे अभी लेंथ बढ़ रहा है ना। अभी ये मेरे कितने सारे एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स, 5 रोज हो गए मेरे। ठीक है, ये मेरे एक बड़ा वाला एरे है, उसमें कितने सारे 5 रोज हैं। फिर हमने देखा कि 4 एक एक रो कितने का है, 4 क्या है, फिर वो नंबर से है या क्या है, फिर से एरे है, फिर से एरे क्या है, एरे ऑफ एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स। ये कैसे रीड करोगे इसे, एरे ऑफ एरे ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स। तो कितने आपके पास होंगे, एरे ऑफ एरे ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे कितने एरेज रहेंगे, परफेक्ट। इसके अंदर फिर 3 मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ प्रोग्राम में, आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे इसका अलग से तो और ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं अभी प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। चलो अलग बनाते हैं इसको, ये प्रोग्राम में इजी हो जाएगा, मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। एरे ऑफ एरे ऑफ एरे, तो मेरे पास क्या है, एरे ऑफ 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 इंटीजर्स। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं अभी, मैं इसको लिखता हूँ अभी न्यू इंट एरे ऑफ, इसका 5 है, इसका 4 है और इसका 3 है, 4 5 4 3। ठीक है, ठीक है, मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। देखो एक एक चीज़ देखो, एरे ऑफ इंटीजर्स प्रिंट किया, ये भी रेफरेंस प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0
0 0। चलो अभी और बहुत सीखना है हमें। आई विल नॉट। ये कैसे क्रिएट होता है, आप स्ट्रक्चर देखो, अभी आप देखो एक बार पूरा स्ट्रक्चर। एक बड़ा बड़ा एरे होगा, उसमें 5 एरे होंगे। देखो यहाँ पर अभी इसको देखो, एरे ऑफ इंटीजर्स, ये कैसे क्रिएट हुआ? इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। फिर इस एरे ऑफ एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। इसके अंदर 3। फिर से एक बार, एक बड़ा एरे, उसके अंदर 1 2 3 4 5 एरे, ये 5। बी ईच एरे, दिस इज ईच एरे कंटेन्स 4 एरेज अगेन। दिस अगेन कंटेन्स 4 एरेज, 1 2 3 4, और फिर लास्ट में आपका है 3। तो ये अगेन दिस एरे कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। अगेन दिस एरे कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। तो देखो पहले वाला बड़ा एरे, उसमें 5 एरे, फिर उस एक एक एरे में 4 एरे, फिर उस 4 में से एक एक एरे में 3 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे अभी इसको प्रिंट करना है सारे एलिमेंट्स। तो मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूँ इसको, विद नोन फैक्ट्स। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी ये तो आपको पता नहीं था इसलिए आपने ऐसे लिखा। अभी मुझे पता है मेरा एक बड़ा एरे होगा, इसमें कितने एरेज होंगे? 5 एरे। इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। और एक एरे में क्या होगा? 4 एरे, और एक में 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक एरे हो गया। देखो इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ थोड़ा। एक बड़ा एरे, उसके अंदर कितने एरेज है? 5। और फिर ये ऐसे, ठीक है, इसको फिर से मैं लिखता हूँ। ये कितने सारे हो गए? हाँ, देखो 5 एरे, 1 2 1 2 3 4 5। इसका साइज ये कैसे होगा? 5 एरेस, उस 5 एरेज में 4 एरेस, 4 एरेज में 3 एलिमेंट्स। 5 एरेस, फिर ईच एरे में आपको 4 एरेस, और ईच इस 4 एरे में आपको 3 एलिमेंट्स। तभी मुझे प्रिंट करना है सब कुछ डेटा भी। एरे कौन सा? हीप 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 मेमोरी एरिया, हीप मेमोरी एरिया, करेक्ट। तब ये मुझे प्रिंट करना है, सारा डेटा प्रिंट करना है मुझे। कैसे करेंगे अभी? पहले तो एक फॉर लूप लेंगे, सबसे बड़ा वाला एरे, आउटर सबसे वाला, तो मैं इसे बोलता हूँ रो 1, ठीक है, रो 0। और ये कौन सा होगा? एरे ऑफ इंटीजर्स लेंथ। ये कितने बार चलेगा? 5 टाइम्स। फिर से एक फॉर लूप लेता हूँ मैं, आई या रो भी ले सकते हो आप, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो यहाँ से मैं आई, चलो इसको लेता हूँ, आई आई आई। फिर यहाँ से मैं फिर से लेता हूँ फॉर लूप जे इक्वल टू 0। और ये कितने बार चलेगा? 4 टाइम। अरे होते हैं 0 आई डॉट में। कितने बार? क्यों? ऐसे देखो, ये चलेगा 5 टाइम्स। अब ये लूप कितने बार चलना चाहिए? 4 टाइम्स। लेकिन 4 टाइम्स किसके? ये 4 टाइम्स कैसे चला? 1 2, इसकी लेंथ निकाली आपने, किसकी? ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला अलग से, फिर इसका भी अलग से, इसका भी अलग से। हर बार आपको लेंथ लेना पड़ेगा, हर बार लेंथ लेना पड़ेगा आपको, इसलिए आपने आई ले लिया यहाँ पर। फिर अभी मुझे क्या करना है? इसके और अंदर एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा कि
और ये कब तक चलना चाहिए? एरे ऑफ इंटीजर्स आई जे डॉट लेंथ, और फिर यहाँ आके आप प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे आप? एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ आई में से जे रो, जे में से के, और फिर आप यहाँ पे दे दो स्पेस। अभी जैसे आपने एक वैल्यू प्रिंट किया तो आप क्या करो, उसके बाद फिर से आप एक लाइन दे दो, नहीं देना तो आप भी, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो मुझे कितना चाहिए? 5 रो चाहिए, यहाँ पे 5 रोज देता हूँ मैं। मुझे एग्जैक्ट ऐसे आउटपुट चाहिए। सेकेंड एरे, थर्ड एरे, फोर्थ एरे एंड फिफ्थ एरे। ठीक है, आई नो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसको समझोगे तो बहुत इजी है। सो हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, 2 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, फिर आप आगे बढ़ो, फिर उसको देखो। अभी एक एरे में क्रिएट कर रहा हूँ 2 by 2, उसको नाम देता हूँ मैट्रिक्स, और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं न्यू इंट 3 by 2। 3 by 2 ये कैसे स्टोर होगा, फिर से एक बार आपको बताता हूँ। 3 by 2 का मैट्रिक्स मैंने क्रिएट कर रहा हूँ अभी, व्हाट 3 by 2। तो मेरे पास एक एरे है, वो पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, उसका कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स, 0 1 2। यहाँ पर भी रेफरेंस होगा, यहाँ पर भी रेफरेंस होगा, क्योंकि वो अलग फिर से एरे है। दिस विल पॉइंट टू अगेन वन ऑब्जेक्ट, this will also point to another object, this will also point to another object. Now this array contains 2 elements. ये ऐसे आपका स्टोर होगा, all the elements are initialized with 0। ठीक, ये क्या कैपेसिटी इसका? 3 by 2, 3 rows, 1 2 3 and 2 columns each, 3 rows and 2 columns each। अभी आपने क्रिएट किया, अभी मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। नवदीप, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? घूम गए? क्यों घूम गए इतना तो? ये वाला 3 by 2 वाला समझाइए आपको। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अभी आपको एक सिंपल एनालॉजी बताता हूँ। लेट्स से आप, मतलब देयर इज समवन, सो दिस इज अ किड हु वांट्स अ कैश, मतलब उसको पैसे कुछ चाहिए इसको। तो वो आता है, लेट्स से फैमिली मेम्बर एक उनको बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन ये फिर इनको डायरेक्ट करते हैं किसी और के पास, ये किसी और के पास, ये लेवल कहाँ तक भी जा सकता है ना। तो लेट से लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाते पैसे। सो यू ट्राई टू, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है ना, किसी के पास जाओ, इसके पास गए, फिर वो आपको घुमाएगा, दूसरे टेबल पे जाओ, वो दूसरा वाला बोलेगा तीसरे टेबल जाओ, तीसरा वाला बोलेगा चौथे टेबल जाओ, आपका लकी हो तो आपको मिल जाएगा। तो वैसे आपको क्या देता है? रेफरेंस देता है। वो खुद तो नहीं जाता ना, वो बोलता है कि उस टेबल पे जाओ, वो क्या बोल रहा है? रेफरेंस। आप उसको क्या दे रहे हो? रेफरेंस। आखिर में आपका डेटा कहीं तो स्टोर होगा, सो दैट इज एट द एंड देयर विल बी सम लोकेशन वेयर योर डेटा विल बी स्टोर्ड, राइट। तो वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे देखो।
हाँ। हाँ। हम्म। कंस्ट्रक्टर होल्ड नहीं करता, कंस्ट्रक्टर होल्ड नहीं करता कुछ, ही जस्ट क्रिएट्स, ही क्रिएट करता है। कस्टमर का ब्रांच आईडी कोई मैं कस्टमर हूँ बैंक हाँ। का अकाउंट का, मेरे अलग अलग बैंक ब्रांचेस में अकाउंट्स होंगे, करेक्ट। एंड प्लस मेरा आईसीआईसीआई अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में डीमैट अकाउंट होगा, करेक्ट। कस्टमर आईडी इस प्रकार से चलते हैं, करेक्ट। वहाँ पे ये प्रैक्टिकल अभी देखो आपको मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड क्यों बनाया ना, आई विल टेल यू। कि अभी लेट से देखो, अभी आप ये क्लासरूम है अपना आईटी शाला, यहाँ पे इतने सारे क्लासरूम्स क्यों बनाए हैं? फॉर इजी एक्सेस, राइट? तो जो डेटा भी स्टोर होगा उनको भी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में उनको रखना है। तो आप फर्स्ट टाइम ऐसे ही आए हो ना, इधर ही आए हो ना, दरवाजे पे ही आए आप, एक ही दरवाजा आपके पास। फिर अभी पूनम मैडम के पास आ गए, आप बोलोगे उनसे क्लासरूम नंबर किधर है, तो यहाँ पर ये मैडम है, उन्होंने बोला कि क्लासरूम नंबर इधर है, तो आपको इधर भेजा उन्होंने, ऐसे। अभी मैं आपको इंटरनल्स बता रहा हूँ, आपको इंटरनल्स बिना बताए मैं आपको जाता था, आपको समझ में आता जाता था। मैं आपको सीधा सीधा बोलता कि ये 3 आइटम्स है, दैट्स इट। हाँ। अभी देखो यहाँ। यस यस। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट एक्चुअली। ठीक है। अभी मैंने ये लिखा है कि मुझे फर्स्ट रो, ये होता है फर्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उसे बोलते हैं रो और कॉलम। तो अभी मुझे चाहिए 3 रोज, एक बड़ा वाला एरे होगा, उसके अंदर मेरे पास कितने सारे रोज होंगे? 3। और हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। इसको ऐसे रीड कर सकते हो, सिंपल। ठीक है। अभी मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सेस। कैसे एक्सेस करेंगे इसे? थर्ड रो से, ये रो नंबर कितना है? 0 1 2। और फिर ये इसका लोकेशन क्या है? 0 1 0 1 0 1। ठीक है। इसको फिर से एक बार देखो, आपके पास 3 रेफरेंस होंगे, रेफरेंस 1, रेफरेंस रेफरेंस 0 1 2। और ये पॉइंट करता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इसमें आपके 2 एलिमेंट्स है 0 0। फिर ये भी पॉइंट करता है 0 0, और फिर ये भी 0 0। ठीक है। अभी मुझे एक्सेस करना है ये वाला एलिमेंट, इसका लोकेशन क्या है? तो ये पूरा एक, देखो इसको पॉइंट किया किसने? आप ए से यहाँ तक आ गए, तो पहले मुझे ये एक्सेस करना है, इसका लोकेशन क्या है? A(1). 1 से आप यहाँ पे आ गए, और इसका लोकेशन क्या है? 0 1 0 1 0 1। तो इसका कैसे एक्सेस करोगे आप? A(1 1). अभी मुझे ये वाला एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करोगे आप? ए ऑफ, ये 0 से आ गए, और ये कहाँ पे आ गए? 1। ठीक। अभी देखो मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, ये वाला A(2), A(2) और 1, सिंपल। और अभी क्या है इसका लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट? 0 0 0। ठीक। तो आप इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको, क्या लोकेशन है उसकी, क्या एलिमेंट्स है आपकी, ऐसे 0 0 0, सॉरी 0 0 0 0। ये आपका मैट्रिक्स हो गया, इसका साइज क्या हो गया? 3/2।
तो आपको ये एलिमेंट एक्सेस करना है। तो व्हाट इज द लोकेशन 0 0, इसकी क्या है 0 1, इसकी क्या है 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1। सेम ही हो गया यहाँ पर, देखो सिंपल। चलो अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, हैश कोड और रेफरेंस, हम रोज रेफरेंस बोल सकते हैं। फिर एक और, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ऑफ 0, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा इसमें। अभी इसमें मैंने क्या बोला, एक एरे होगा बड़ा वाला, उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे 3। तो फर्स्ट वाला स्टोर होगा 0, सेकेंड वाला 1 पे, थर्ड वाला 2 पे, 0 1 2। हाँ यहाँ पे रेफरेंस रहेंगे ना, यहाँ पर भी रेफरेंस, यहाँ पर भी रेफरेंस। तो आपके पास 4 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। देखो ये अभी तो आपने मैट्रिक्स वाले देखे भी नहीं प्रोग्राम। मैट्रिक्स एडिशन ये क्या रहेगा, इसका लेंथ क्या रहेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मैट्रिक्स। आउटर मैट्रिक्स है ना, उसकी 3 एलिमेंट्स है, 3, इसका 2। आपने प्रैक्टिस किया अरे क्वेश्चंस पे ललित। 3 2 2 2 2। ठीक, अभी मुझे क्या करना है, एरे 1 ये जो वाला है 0, मतलब फर्स्ट एरे का कहाँ पर सिचुएशन है, 0th लोकेशन, तो उसकी डिटेल्स प्रिंट करना है मुझे। क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट एरे एलिमेंट्स। तो कैसे प्रिंट करोगे आप, मैट्रिक्स ऑफ 0 0 1 2, ये हो गया फर्स्ट एरे का एलिमेंट्स। ये क्या बोला उसने, Q2 क्यों बोला, ये आपके पास है ही नहीं। आपके पास कितने एलिमेंट्स है, एक एरे में 2 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट एरे में कितने एलिमेंट्स है आपके पास, वही है, तो वही होगा। अभी मुझे क्या करना है, सेकेंड का प्रिंट करना है, सेकेंड एरे एलिमेंट्स। तो क्या लोकेशंस रहेगी, बस 1 1, दैट्स इट। थर्ड की 2 0 2 1। सेकेंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एरे का सेकेंड एलिमेंट लाइक दिस, मतलब सेकेंड मतलब थर्ड है ऐसे वैसे। अभी इसे फॉर लूप का यूज करके करते हैं अपन। अभी ये तो ऐसे तो कब तक चलेगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो भी हम प्रिंट कर रहे थे उसको लूप में ऐड करते हैं। अभी आप ये बार बार थोड़ी करोगे जितने मैट्रिक्स हैं, तो पहले आप यूज करोगे फॉर लूप, रो करोगे, रो विल स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेके मैट्रिक्स ऑफ लेंथ। फिर एक और फॉर लूप लगेगा, क्योंकि एक और रो में आपको एलिमेंट्स प्रिंट करना है मल्टीपल, तो वो क्या रहेंगे आपके कॉलम्स। फॉर आई कॉलम 0 से लेके कब तक, रो की लेंथ। सो मैट्रिक्स ऑफ रो मतलब 0 होगा तो 0th रो की लेंथ डॉट लेंथ। फिर अभी क्या प्रिंट करना है आपको, प्रिंट एलन मत करो, बस आप मैट्रिक्स ऑफ रो
एंड कॉलम। फिर आप थोड़ा स्पेस दे दो और जैसे रो प्रिंट होगा आप नया लाइन दे दो, जैसे हमने स्टार में देखा था। सो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये ऐसे प्रिंट होगा। 3 रोज। अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। मेरे पास कितने रोज है, मेरा ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, 2 बार। और ईच रो में मेरा ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, फर्स्ट टाइम मेरा चलेगा 4 टाइम्स और 2 बार सेकेंड टाइम चलेगा मेरा 2 टाइम्स। ऐसे भी, ऐसे जो एरे क्रिएट किया ना, इसे बोलते हैं जैक्ड एरे। क्या बोलते हैं इसे, जैक्ड एरे। मतलब जो इंटरनल रोज है उनका साइज अनइक्वल है, तो उसे बोलते हैं जैक्ड एरेस। क्या बोलते हैं उसे, जैक्ड एरेस। JAW, let me write it. Arrays with different row size. Arrays with different row sizes. चलो मैं आपको पूछता हूँ अभी, मेरे पास एक एरे है, व्हाट इज द आउटपुट। ये कैसा एरे क्रिएट हुआ, ये रो तो है आपके पास, कितने सारे रो है, 3 है आपके पास। कितने रो है, 3 रो है। लेकिन आपके रो में कुछ है, आपके रो में कुछ है, कॉलम कितने हैं, तो कॉलम का लेंथ कितना कैसे फाइंड करोगे आप, मतलब कॉलम कितने तक चलने चाहिए। एक रो में कितने, एक रो आपको पहले क्या करना है, रो, एरिया ऑफ रो उसका लेंथ लेना है आपको, किसका, एरिया ऑफ रो का लेंथ। तभी आप ये प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे, एरिया ऑफ रो, और उस रो में आपका कॉलम, और फिर यहाँ पे न्यू लाइन कुछ प्रिंट होगा। यहाँ पे कंट्रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि एरे का लेंथ कितना है, 0, कॉलम कितना है, 0, 0 लेस देन 0 फॉल्स, एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5। अभी क्या होगा, आपके पास 3 रोज रहेंगे और हर एक रो में 5 वैल्यूज रहेगी। देखो 3 रोज और 5 कॉलम। तो पहले रो देखो, रो स्टार्ट करो 0 से लेकर एरे डॉट लेंथ इसकी, फिर हर एक रो में आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करना है, इसलिए आपको फिर से आपने फॉर लूप ले लिया, जैसे आपने स्टार प्रिंट करिए थे। तो फिर आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कितने रोज रहेंगे, 3 रो। तो ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, ये वाला 3 बार चलेगा, और ये फॉर लूप हर एक रो के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे तो हर एक रो कितने साइज का है, फिक्स साइज 5। ठीक, अभी मुझे क्या करना है, यूज़र को बोलना है कि मुझे एक मैट्रिक्स बना के दे दे। यूज़र बोलेगा कि मुझे 3/4 का मैट्रिक्स चाहिए, तो उससे एक्सेप्ट करना है आपको डेटा।
डेमो 8 मैट्रिक्स एक्सेप्ट, यूजर से एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, यूजर से मैट्रिक्स एक्सेप्ट करना है। तो यूजर को बोलना है इंटर दी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो फिर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लेने के लिए आपको चाहिए स्कैनर इक्वल टू स्कैनर, और फिर आपको लेना है इंट रो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, वैसे आपको कॉलम्स। ठीक, मिल गया आपको। और इसका यूज करके आप क्रिएट करोगे मैट्रिक्स इक्वल टू न्यू इंटीजर रोज एंड कॉलम्स। फिर उसको फिर से बोलना है क्या, इंटर दी मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो फिर मैट्रिक्स उससे एक्सेप्ट करना है, तो हम यूज करेंगे फॉर रोज, कितने रोज, मैट्रिक्स डॉट लेंथ। फिर उस रो में आपको कॉलम्स भी एक्सेप्ट करना है, तो कॉलम कितना होना चाहिए, मैट्रिक्स के रो का लेंथ। फिर आप क्या करोगे, मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ये आपने एक्सेप्ट कर दिया। फिर अभी आप प्रिंट भी कर दो, मैट्रिक्स सेम चीज कॉपी करो, प्रिंट ही तो करना है आपको। बस यहाँ पे प्रिंट क्या करना है आपको, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, द न्यू लाइन। चलो इसको डिबग करते हैं एक बार, कर सकते हैं ना, ऑप्टिमाइज करेंगे, लेकिन अभी करेंगे तो आप तो अभी इसका मेथड्स बनाते हैं अपन। ठीक है, चलो अभी यूजर से रोज एंड कॉलम्स एक्सेप्ट करते, 3 by 3 रोज हो गया, कॉलम्स, तो आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। यस, योर मैट्रिक्स इज क्रिएटेड, ऑल द एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज विथ 0 0 3 by 3, perfect। okay, now let's accept the elements, we have to accept 3 by 3 मतलब total 9 elements we have to accept। how many, 9। so I will add all the elements in one shot, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तब यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने फिल कर दिए, आपका मैट्रिक्स 1 by 1 हो गया फिल। ओके, अभी देखो आपका मैट्रिक्स देखो रेडी हो गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बस उसे ही प्रिंट कर रहे हैं, अभी प्रिंट कर रहे हैं, क्लियर करते हैं। 1 2 स्पेस नहीं दिया हमने, गलत किया थोड़ा, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम स्पेस देते प्रिंटिंग के टाइम। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मैंने ये एक्सेप्ट करा और ये प्रिंट किया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बस ये हो गया प्रिंट मैट्रिक्स। ये क्या कर रहे हो आप, ओके हो गया। तो आपको जितने बार चाहिए एक्सेप्ट करना है, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 3 प्रिंट करना, तो बस प्रिंट मैट्रिक्स कॉल करो।